Welcome students in our YouTube channel Discovery International collaboration with the YCL, the brand of quality education. We provide very good facilities for the preparation of pre-examination of JEE and NEET. Okay, so please subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting new updates in your future for the new notification about our all type of videos. Okay, myself Sunil Kumar, botany faculty. In previous video I have explained about the secondary pollutants. Which kind? Secondary pollutants. Today in this video I will explain about greenhouse effect. Okay, what is greenhouse? First of we should know about the definition of greenhouse. What is greenhouse? ग्रीन हाउस को ग्रीन से ही स्टार्ट करते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट. GHE. First of all, try to learn something about it. What is greenhouse? Greenhouse is a structure. Greenhouse is a structure or man-made building in which we can grow the off-season plants or any type of plants, okay, any type of plants, artificial or we can say man-made, which contain artificial transparent shade, okay, artificial transparent shade. Okay, it contain this shade artificially. Okay, and this type of building, the sunlight can come so easily. Sunlight है वो easily आ सकती है. Okay, and this greenhouse also help us to maintain some climatic conditions according to requirement of the plants. Okay, so it is artificial climatic condition container. What is artificial climatic conditions container? It by the help of this structure, this building, this house, we can provide some specific kind of climatic condition so that plant can be grow so smoothly, so easily by the help of this structure. Therefore it is known as greenhouse. Okay, क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस कहलाता है क्योंकि इसकी हेल्प से हम किसी भी प्लांट को इस ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं. ओके, और इसी की तरह का जब कोई इफेक्ट होता है, यानी कि इसमें सनलाइट आ सकती है, मतलब इसमें सनलाइट है वो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती इजीली अपने आप. Okay, so after entering of the sunlight, it remain continue in the this house. Okay, for the maintaining of warmth, continue warmth. Okay, and for the maintaining of humidity, it house or this house specially बनाया जाता है. किसके लिए बनाया जाता है? कुछ खास टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए बनाया जाता है. जब ऐसा ही इफेक्ट होता है हमारी अर्थ पर तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट का यहां पर मीनिंग समझिए आप. इट इज अर्थ. It is our earth
Due to increasing of some specific kind of gases, formation of a blanket just surrounding the earth take place. Formation of it is एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में एक ऐसा ब्लैंकेट बन जाता है खास गैसेज का जो उसके चारों तरफ पाया जाता है. ओके, इट इज नोन एज द ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस gases. Okay, and these greenhouse gases may be, which is carbon dioxide, methane, CFC, nitrogen oxide. Okay, these gases contribute as a greenhouse gases. वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी भी प्रकार से क्या नहीं मानते, किसी भी प्रकार की पोल्यूटेंट नहीं मानते हैं, बट इसकी एक अमाउंट होती है, उस अमाउंट से ऊपर जब ये ज़्यादा बनने लग जाती है, जब इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये प्रोडक्शन कई तरीके से होता है, तब ये क्या करता है, एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूटिव गैस की फॉर्म में पाई जाती है. इसका जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस कंट्रीब्यूटिव गैस की फॉर्म में होता है, यानी कि टोटल कितना 60%. ओके, 60% कंट्रीब्यूशन एज ए ग्रीन हाउस गैस डन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, 20% बाय methane, 14% by CFC, and 6% remaining done by nitrogen oxide. Okay. So these gases help to form this specific kind of a blanket, and this blanket help to penetrate sunlight of a short wavelength. The short wavelength sunlight can come on the earth's surface, but after reflection from the earth's surface, they change into large wavelength of sunlight can't be crossed again this blanket of gases. Okay, due to again and again reflection of these type of the long wavelength sunlight, the warmth of earth's surface will increase continuously, and this help to increase global warming. That mean globe level वार्मिंग, ग्लोबली वार्मिंग. तो ये ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण बढ़ती है, इन ग्रीन हाउस गैसेज के कारण बढ़ती है, क्योंकि जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जितनी भी सनलाइट रेडिएशंस है वो आ तो सकती है अर्थ पर, लेकिन अर्थ से टकराकर वापस जा नहीं सकती, इसलिए वो यहीं पर रह जाती है. और अगेन एंड अगेन मेंटेनिंग ऑफ दीज और रेडिएशन ऑफ द लार्ज वेवलेंथ, global warming will increase. Okay, globe level increasing of temperature take place here. Okay, it is known greenhouse effect. Okay, greenhouse effect के क्या क्या बैड इफेक्ट होते हैं और क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं. तो कुछ चीज़ों के पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो आप समझिए. अब एक चीज़ और है, इन गैसेज के साथ साथ कुछ और गैसेज भी इनकी एसेसरीज गैसेज होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती है, जैसे कि वाटर वेपर, H2O वेपर, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें भी होते हैं, लेकिन इनका कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता जितना इनका होता है. ओके, और इनमें भी सबसे ज़्यादा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके.
Now, the importance of greenhouse effect and its effect. Effect of greenhouse gases. Number one, increasing of greenhouse effect known as carbon dioxide fertilization level or point. Carbon dioxide fertilization effect. That means the amount of carbon dioxide found into 0.003% into atmosphere. Increasing of this value help to increasing of photosynthesis. 0.044, 0.055, 0.066 may be the rate of photosynthesis increase continuously gradually. ओके बढ़ती रहेगी भाई, इसकी अमाउंट बढ़ रही है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं बढ़ेगी? लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा इसकी अमाउंट बढ़ने लग जाती है देन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस बढ़ते बढ़ते रुक जाएगी, प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल अकर. नंबर टू, इंक्रीजिंग ऑफ globe level temperature. That means in last some years due to increasing of carbon dioxide, ये बताया भी गया कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना बड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. कब से कैलकुलेशन की गई है? इसकी कैलकुलेशन की गई है 1956 टू 2002. इन 1956 कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन थी इसकी थी 280 ppm. द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 1956 वाज 280 ppm, but after increasing it reach up to 368 ppm. कितना? 368 पार्ट पर मिलियन तक इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है. और यदि इसी रेट से इंक्रीजिंग रेट यदि यही बनती रही तो ये कैलकुलेशन कहा गया था कि 2020 तक ये डबल हो जाएगी. क्या? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट ऐसा तो नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कई सारे कारण रहे हैं इस अमाउंट को इतना ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए. ओके, लेकिन ये ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो भी क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, यानी कि लगभग 400 ppm के आसपास प्रेजेंट टाइम में इसकी अमाउंट बढ़ गई है. बट आपके एनसीईआरटी में इतनी ही अमाउंट बताई गई है जो आपको इतना ही लर्न करना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, नंबर 3, नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा इसका? ग्लोबल टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है लास्ट कुछ डिकेड्स में? ये कहा गया कि भाई 2020 तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा. बट इतना नहीं होकर के पिछले कुछ ईयर में कितना बढ़ा है? 0.6 डिग्री सेल्सियस. एंड इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर एट दिस लेवल, एट दिस रेट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल कॉज क्या क्या करेगा? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे. इंक्रीजिंग ऑफ ओशियन लेवल कितना? 2 to 3 mm per year. ओके, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ दिस लेवल ऑफ ocean level water shall be very dangerous for the
seashore areas, residing persons and system will submerge totally into water. पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे. नंबर 5, greenhouse gases remaining on the earth very compulsory but at a certain level. After this level it will be very dangerous because it increase globe level temperature, which will be cause a very wrongly effect on the earth or our एटमॉस्फेयर. ओके, इतना टेम्परेचर पर ईयर बढ़ रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है. लेकिन यदि ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस. दैट विल बी वेरी चिली. दैट विल बी वेरी चिली. बट ड्यू टू हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इट मेंटेन अप 15 degree Celsius as a average temperature. Average temperature on the earth. You know, this temperature is a survival temperature on the earth, but this temperature is a non-survival temperature on the earth. ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसलिए कुछ लेवल तक तो ग्रीन हाउस गैसेज होना जरूरी है, बट ज़रूरत से ज़्यादा जब यदि होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही आज कुछ समझेंगे. कौन सा है टॉपिक हमने पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है. वो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस पर बना है? इस पर बना है, ग्रीन हाउस पर बना है. समझ गए आप? ग्रीन हाउस क्या होता है? एक ऐसा हाउस होता है, एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें सनलाइट एंट्री कर सकती है, निकल नहीं सकती. इसलिए इसका यूज होता है खास ह्यूमिडिटी मेंटेन के लिए, वार्मथ को मेंटेन के लिए, और अंदर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन उनको रेगुलेट करने के लिए इस बिल्डिंग को बनाया जाता है. जस्ट लाइक ग्रीन हाउस, द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो कैन बी अकर ऑन द अर्थ ड्यू टू प्रेजेंस और इंक्रीजिंग ऑफ दीज गैसेज. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCN, नाइट्रस ऑक्साइड. कंट्रीब्यूशन इनका ये होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की फॉर्म में ये एक ब्लैंकेट बना लेती हैं और इसके कारण स्मॉल वेवलेंथ सनलाइट आ सकती है, बट वो लार्ज वेवलेंथ नहीं आ सकती. ओके, तो इस प्रकार से टेम्परेचर है वो अर्थ का बढ़ता जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ग्लोबल लेवल इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग. ओके, इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं आपने यहाँ समझ ही लिए हैं कि पहला इफेक्ट होता है फर्टिलाइजेशन इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट हेल्प टू इंक्रीजिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक रेट ऑन अर्थ, बट एट अप टू एट ए सर्टेन लिमिटेड लेवल. Over this level, it will be harmful. Stopping or inhibiting of photosynthesis will occur due to increasing the temperature. Solarization of the chlorophyll will occur. यानी कि क्लोरोफिल वो टूट जाएगा, सोलराइजेशन हो जाएगा. वो जब डिकम्पोज हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस फिर नहीं हो पाएगी. 1956 से लेकर 2002 तक इसके कैलकुलेशन किया गया और वो किया गया कि इस समय इतना लेवल था इसका 280 ppm, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण इसका 2002 यानी कि 2002 तक इसका लेवल ये बढ़ गया, जो कि 220 में यदि इसी रेट तक बढ़ता गया तो 220 तक इसका एक कैलकुलेशन था, इट विल बी डबल. बट ऐसा तो नहीं हो पाया, बट फिर भी इसकी अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ी. इट को ग्लोबल टेम्परेचर जस्ट डबल अप टू 2020 ये आकलन भी किया गया था, लेकिन जस्ट डबल तो नहीं हो पाया. लेकिन ये कितना हो पाया है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ पाया है पर ईयर. इस रेट से 0.6 डिग्री सेल्सियस पर ईयर की रेट से यदि ऐसा ही बढ़ता रहा, it will be cause very dangerous effect on the glaciers. Glaciers will be melt and rising of the ocean level will, water level will increase. Okay, this melting of so many large size of ice stones and start floating on the surface of water in the ocean known as iceberg will be cause a very dangerous accident into
ocean traffic system. Okay, without these greenhouse gases, temperature will be remain minus 18 degrees Celsius average temperature on completely on the earth, and it will be very chilly and non-survival condition. Okay, and at comparatively at present time average temperature which is 15 डिग्री सेल्सियस. आज का कितना एवरेज टेम्परेचर, आज तक का जो प्रेजेंट टाइम का जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो है 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि कितना हो जाएगा इतना. तो एक तरीके से यदि देखा जाए तो हम ये भी कहेंगे कि यार ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होना भी चाहिए और ग्रीन हाउस इफेक्ट वो नहीं भी होना चाहिए. नहीं, एक सर्टेन लिमिटेड तक ये होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इन गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा करेगी, जो धीरे धीरे हमारी अर्थ को भी, अर्थ के ऊपर पाई जाने वाली लाइफ को भी बहुत बड़े डेंजर में धकेल देगी. ओके, सो आज के इस 12th क्लास के इकोलॉजी सिस्टम में इतना ही पढ़ेंगे. इसी वीडियो के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन एंड ओके एंड द चेक पॉइंट ऑफ एयर पोल्यूशन. ओके, बाय. बने रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, एंड बेल आइकन को भी पुश कीजिए सो दैट वी कैन गेट, you can get new notification. Okay, bye.